Good morning, my dear students, and welcome back. I am Ms. Ritu, going to take your mathematics class today. And as we are already done with chapter number 1, which was number and numeration, today I am going to introduce chapter number 2, which is addition. Addition is really very simple. But before starting the chapter, I want to talk about few facts of addition related to 0 and 1. Yes, the first fact related to 0 is that when we add 0 to a number, the sum is the number itself. मतलब जब हम किसी भी नंबर के अंदर 0 को ऐड करते हैं तो जो नंबर होता है वो उतना ही आता है, वो नंबर बड़ा नहीं होता, वो नंबर इंक्रीज नहीं होता। जैसे कि अगर हमें दिया गया हो 2 + 0, आंसर हमारा 2 ही आएगा। अगर हमें 0 + 2 दिया हो तो भी आंसर 2 ही आएगा। 3 + 0, आंसर इज 3। 0 + 3, आंसर इज 3, right? Next fact which I am going to tell you is that related to number 1. Number 1, when we add number 1 to a given number, the answer will be or the sum will be the next to it. Means अगर हमें 2 के साथ 1 ऐड करने के लिए दिया गया है तो 1 ऐड के बाद क्या होगा, उससे नेक्स्ट नंबर आंसर होगा। जैसे 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, या इससे भी कोई भी बड़ा नंबर हो, अब जिसमें भी हम 1 ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो सम आएगा, वो उस नंबर से नेक्स्ट वाला ही होगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर बुक एक्सरसाइज बाय लर्निंग थ्रू फ्यू एग्जाम्पल्स। मैं नोटबुक में या कुछ टीचिंग एड्स के साथ आपको एडिशन में हेल्प करूंगी, जिनके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जब आप अपनी बुक में एक्सरसाइज करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यू हैव टू फोकस while your teacher is teaching you, and I'm sure you'll do it. Okay, so shall we start our exercise? Now look at this page carefully. I have made this worksheet for you so that I can clear the concept to you. First we will learn adding on the number line. To add on the number line, put your finger on the first number and then count forward the given number of times. Alright, on the number line we put our finger on the given number, like number 1 is given here. We have to add 1 + 3. We have to do this addition. So we will put our finger on number 1 and we will count forward 3 times. Alright, so let's start it. Like 1 + 3 is given to us. So how we will add with the help of number line? We will start from number 1. You can put your finger on number 1 and count forward 3 times. And you can do one more thing, that you can circle number 1 and you can jump forward 3 times. 1 2 3. So where we have reached, we have reached number 4. So answer is number 4. All right, similarly we will do addition on this number line. Like 4 + 2 is given to us. तो उसी तरह जैसे हमने अभी ऊपर किया, हम नीचे भी ऐसे ही करेंगे कि first we will put our finger or we will circle number 4 and we will go forward how many times? 2 times only. 1 2. So 4 + 2 is, हम कहाँ पे जंप करते हुए, हम कौन से नंबर पे आए 2 टाइम्स जंप करने के बाद? नंबर 6. So 4 + 2 is 6. See, it is very easy. Now look at this page, page number 49 from your book. So we will practice these addition. Okay, if suppose 7 + 1 5 + 4 36 + 2 50 + 8 horizontally, if the sums are given of addition, how we will add? First of all, see here we have 7 + 1, and about number 1, in the beginning of the class I told you that when we add 1 to a number we get the next number. जब हम भी किसी भी नंबर के अंदर 1 ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा उसका नेक्स्ट नंबर ही होता है. Like 7 + 1 is 8, right? Now 5 + 4, I know it is also very easy. 5 + 4 is 9. बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने नंबर लाइन से एडिशन सीखा वही हम यहाँ फॉलो करेंगे. बट वी विल नॉट ड्रॉ अ नंबर लाइन हेयर, वी विल काउंट विद आवर फिंगर्स और थ्रू आवर टिप्स. ओके,
5 plus 4. 5 is already given. So biggest number is 5. We will count forward 4 times. 6, 7, 8 and 9. Answer is 9. Now 36 plus 2 is given. So we have to count forward 2 times. 36 के बाद 37 and 38. Now 50 plus 8. How many times we have to count forward? 8 times. 50 के बाद हम 8 times तक forward count करेंगे. And now we can use our tips also. We can use our fingers also. Okay. So here I am going to use my tips. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 and 58. 50 plus 8 is 58. Now here also I am going to tell you that we know that 2 plus 3 is 5. जैसे कि हमें पता है 2 plus 3 5 होता है. यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हमें हॉरिजॉन्टली एडिशन दी हुई है, नंबर अगर इससे बड़े हैं, तो उसको ईजी तरीके से ऐड करने के लिए आप अपनी एग्ज़ाम शीट की बैक साइड में या अपनी रफ नोटबुक में या अपनी फेयर नोटबुक में भी उसको साइड में इस तरह से वर्टिकली लिख के ऐड कर सकते हो. जैसे कि हमें हॉरिजॉन्टली 2 plus 3 दिया गया था तो आंसर इज़ 5, लेकिन अगर हम उसको वर्टिकली लिख के भी ऐड कर सकते हैं 2 plus 1 is 5. So the answer will be same. Now we will do page number 50. Do the following addition. पेज नंबर 50 पे आपको इस तरह से एडिशन दी हुई है. 6 plus 4 is same as 4 plus 6 is equal to 10. यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि 6 plus 4 4 plus 6 के बराबर ही होता है, क्योंकि आंसर दोनों का 10 ही आता है. चाहे हम 6 में 4 प्लस करें या हम 4 में 6 करें, आंसर हमारा 10 ही होगा. सिमिलरली 2 plus 4 is same as dash plus 2. कि 2 plus 4 we know that 2 plus 4 is 6. अगर हम 2 में 4 ऐड करते हैं या हम 4 में 2 ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 6 ही आएगा. तो अगर हमसे इस तरह से पूछा जाए, इस सेम एज करके अगर हमसे पूछा जाए कि 2 plus 4, तो हम क्या करेंगे? दैट मीन्स कि हम नंबर्स को चाहे उल्टा कर दें, 2 को इधर कर दें या 4 को इधर कर दें, आंसर हमारा सेम आएगा. 2 plus 4 is same as 4 plus 2. आंसर विल बी 6. ठीक है. अब हम इसको एक टीचिंग एड के थ्रू भी लर्न करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी. Now we will learn this exercise through the help of these teaching aids, and we have a student also with us who will help us. Okay, Sanvi, please tell me कि मैंने एक तरफ कुछ पेंसिल्स रखी हैं और दूसरी साइड भी मैंने कुछ कलरफुल पेंसिल्स रखी हैं. क्या आप पहले मुझे काउंट करके बताएंगे कि यहाँ दोनों साइड कितनी कितनी पेंसिल्स रखी हैं? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are 6 pencils. Very good. 1, 2, 3, 4. These are 4 pencils. Great. And what will be the answer? 6 plus 4 is? 10. Yes, and we can count forward also. 6 के बाद हम 4 times अगर count forward करेंगे, like 7, 8, 9, 10, तो आंसर हमारा क्या होगा? 10. ओके सानवी, अगर मैं इन पेंसिल्स को इस तरह से शफल कर दूं कि मैंने यहाँ 6 पेंसिल्स यहाँ रख दी और 4 पेंसिल्स यहाँ हैं. नाउ 4 is there and 6 is here. So what will be the answer? आंसर तो फिर भी सेम रहेगा. Yes, आंसर तो फिर भी सेम रहेगा, क्योंकि टोटल पेंसिल्स हमारी 10 ही हैं. चाहे हम 4 plus 6 करें या हम 6 plus 4 करें, आंसर हमारा क्या रहेगा? 10. वेरी गुड. अब हम कैंडीज की हेल्प से करेंगे. ओके, नाउ वी हैव दीज कैंडीज ओवर हियर. नाउ Sanvi will help us by adding these candies. Now Sanvi, please help us. Please add these candies and let us know what will be the answer. Okay. 1, 2. These are 2 candies. Okay, so these are 2 candies. And how many candies are here? 1, 2, 3, 4. These are 4 candies. Very good. So what will be the answer? 2 plus 4 is? 6. Yes, 2 plus 4 is 6. Very good. And again, if I shuffle these candies, 4 अगर वहाँ चला जाए, 2 यहाँ आ जाए, then what will be the answer? आंसर तो फिर भी 6 ही रहेगा. Yes, चाहे 4 plus 2 हो या 2 plus 4 हो,
answer will remain the same. I hope this activity will help you in understanding this concept. Now we will do exercise from page number 52 from your book and chapter addition. Suppose अगर हमें इस तरह से एडिशन दी हुई है, do the following addition. ब्रैकेट में लिखा है 7 plus 3 then plus 8 is same as 7 plus 3 plus 8 is 18. मतलब पहले ब्रैकेट में लिखा था 7 plus 3, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस 8. पहले हम इनको ऐड करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है. 7 के बाद आप 3 टाइम्स फॉरवर्ड काउंट करोगे तो आंसर आता है 10. लाइक 8, 9, 10. तो आंसर इज 10. 10 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 18. इज सेम एज 7 plus 3 plus 1 is equal to 18. देखिए हमारा आंसर सेम है. तो वो बेसिकली हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि नंबर्स चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखे हों, 7, 3, 8, 7, 3, 8 लिखे हुए हैं, सेम नंबर्स इस तरफ है, सेम नंबर इस तरफ है. पहले उन्होंने 7 plus 3 को ब्रैकेट में डाला, यहाँ 3 plus 8 को ब्रैकेट में डाला, बट दोनों साइड नंबर सेम है तो आंसर विल रिमेन सेम. आंसर सेम ही रहेगा. जैसे कि यहाँ 6 plus 4 is 8 इज सेम एज 6 plus डैश प्लस 8. तो हम पहले इनको टोटल कर लेंगे कि इनका आंसर ऐड करने के बाद कितना आता है. 6 plus 4 is 10, 10 plus 8 is 18. तो अब यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. 6 is already here, 8 is already here, नंबर 4 is missing. तो नंबर 4 plus 8 आंसर कितना आएगा. 6 plus 4 10, 10 plus 8 18. तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि you can add two numbers in any order and the sum will remain the same. आप किसी भी ऑर्डर में नंबर को ऐड करो, आंसर हमारा सेम ही आएगा. Now we have next exercise from the same page is that fill in the missing number to make a sum of 10. यहाँ पे हमें आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है 10, 10, 10 and 10. हमें यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो लिखना है. हमें एक नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें दूसरा नंबर लिखना है जिसको ऐड करने के बाद हमारा आंसर 10 आए. तो हर एक में हमें ऑलरेडी 10, 10, 10 दिया हुआ है तो हमें पता है आंसर हमारा 10 है. एक नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है तो मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है. मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करेंगे हम कि सपोज 3 हमें दिया हुआ है तो 3 के बाद हम तब तक फॉरवर्ड काउंट करेंगे जब तक 10 नहीं आ जाता. चलिए हम अपनी फिंगर टिप्स पे इसको काउंट करते हैं. 3 के बाद हम फॉरवर्ड काउंट करेंगे तब तक जब तक 10 नहीं आ जाता. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो 7 इज द मिसिंग नंबर. ओके, नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे. यहाँ पे नंबर मिसिंग है, 5 हमें दिया हुआ है और आंसर है हमारा 10. तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा जिसको ऐड करने से हमारा आंसर 10 हो जाएगा. चलो काउंट भी कर सकते हैं. वैसे ये बहुत इजी भी है कि 5 plus 5 10 होता है. यहाँ पे भी हमें 6 दिया है, नेक्स्ट नंबर मिसिंग है तो हम 6 के बाद तब तक काउंट करेंगे जब तक 10 नहीं आ जाता. तो 6 के बाद अगर हम फॉरवर्ड काउंट करते हैं तो देखते हैं कि हमारे कितने नंबर्स आते हैं. 7, 8, 9, 10. दैट मीन्स नंबर 4 इज मिसिंग. तो वी विल राइट हेयर नंबर 4. अब यहाँ 7 के बाद कौन सा नंबर मिसिंग है वो भी हम ऐसे ही करेंगे. 7 के बाद हम तब तक फॉरवर्ड काउंट करेंगे जब तक हमारा 10 नहीं आ जाता. 8, 9 एंड 10. आंसर इज 3. सी एडिशन कितना सिंपल होता है. नाउ वी विल प्रैक्टिस सम्स ऑफ एडिशन फ्रॉम पेज नंबर 53 ऑफ योर बुक चैप्टर नंबर 2 एडिशन. ओके, नाउ वी हैव सम्स ऑफ एडिशन इन दिस पैटर्न. बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जब आपको इस तरह से सम्स दिए जाएंगे, एक चीज़ आपने नोट की, हर जगह लिखा है OT OT. व्हाट इज दिस OT? हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर इन न्यूमरेशन में सीखा था ना, प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 100. तो वो हमने इसीलिए सीखा था कि हम उसी को फॉलो करते हुए इस पैटर्न पे एडिशन करेंगे. तो हमने क्या सीखा था कि वाइल एडिंग 2 digit नंबर्स वी फर्स्ट ऐड द डिजिट्स इन द वंस प्लेस and then we add the digit in the tens place. हम इस तरह से एडिशन करने के लिए पहले हम वंस की प्लेस पे जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करेंगे, उसके बाद टेंस वाले करेंगे. तो चलिए इसी को फॉलो करते हुए हम अपनी ये एडिशन करते हैं. 8 plus 1 is 9. अब हम टेंस की प्लेस वैल्यू वाले नंबर्स को ऐड करेंगे. 1 plus 2 is 3. Now we will start with the
प्लेस वैल्यू, जो नंबर्स हमारे वंस की प्लेस वैल्यू पे है उनको ऐड करेंगे. 5 + 4 इज 9, 6 + 2 इज 8. फिर से हम ऐसे ही करेंगे, वंस की प्लेस वैल्यू पे जो नंबर्स हैं पहले उनको ऐड करेंगे. 8 + 1 इज 9, 2 + 4 इज 6. Again we will start from the place value numbers of ones. 1 + 6 या 6 + 1 is 7. 3 + 5 या 5 + 3 is 8. So sums of additions are always very simple if you follow the rules. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन टुडे. और जितनी भी तरह से आज हमने एडिशन किया वो सभी आपको प्रैक्टिस करने हैं. यू हैव टू डू दी सम्स इन योर बुक ऑल्सो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दैम इन योर रफ नोटबुक ऑल्सो रेगुलरली, बिकॉज द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर you will understand the concept. And in our next class, we will learn addition of 3-digit numbers with carryover. I'm sure you liked your maths class today. I liked it too. See you soon. Take care. Bye-bye.